Then Pranam. Sarva Pranam, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, Koti Koti Pranam. Om Namo Bhagavate Jai Jai Jnanatamrindasya Jnanajanashalakya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Namam Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Shimte Jayaptak Swamanite Namne Namacharya Padayana Thai Krupa Pradayani Gaur Katha Dham Dhaya Nagar Gram Tarni Namam Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamanite Namne Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So today we're going to see very exciting pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu's sankirtana. So there were so many atheistic people who were criticizing Chaitanya Mahaprabhu's, they said that why are these people singing so loudly the names of the Lord, actually only supposed to chant it in the mind, and we are going to tie up these devotees and throw them in the river, all these kinds of very offensive things they were saying. And then they were saying that this will bring about the ruination of our village because they're not following the Shastras. So they were all kept away. The door was closed for all these atheistic people. But there were many pious people who wanted to come, who really appreciated and wanted. But then Chaitanya Mahaprabhu had said, no non-devotees. And so he personally closed the door. And so what would have, so then, but there was one brahmachari who was living a very pure, clean life. He was very honest, truthful, and he was leading, he was just having milk and fruits, living on that. And he wanted to see Chaitanya Mahaprabhu's, dancing and kirtan. Everybody was very curious because, they knew that something like a big festival was happening. And so he used to go to Srivas's house and ask him, almost every day he would beg Srivas, please, I just want to see, then I'll be so blessed. I want to see the Lord dancing and all the Vaishnavas. Please allow me. And Srivas would say, no, because he was so scared. So many people would beg the devotees. But the devotees were afraid of Chaitanya Mahaprabhu's anger. And he is Paramatma, he knows everything. So nobody allowed anybody to come. But this one time, this brahmachari, every day he would come and beg him. So he thought, okay, since you're a sinless person and you're very pure, okay, I will allow you to see, but then you hide and see. So this brahmachari was very happy and he was hiding. And so the kirtan started. All the devotees, were completely in a trance. They were in another world. And Chaitanya Mahaprabhu was also lost in himself, and they were dancing and singing so nicely. Nityananda and Gadadhar were on either side of Chaitanya Mahaprabhu, and Advaita would go around dancing from one point to the other. So like that, they were fully immersed. And at that time, what happened? Suddenly, in the middle, Chaitanya Mahaprabhu stopped. He said, I'm not feeling ecstasy. I'm sure there's somebody hiding here. And then Srivas was very frightened. He told him, yes, there is one very pure person. He is a celibate brahmachari, and he only drinks milk and he has only fruits and is very, very clean in his habits, everything. So he wanted to see very much. That's why I allowed him. Chaitanya Mahaprabhu got really angry. He said, what do you mean? What are you saying? You mean to say just simply you perform some austerities by drinking milk and all that, you can get me? What tapasya, what spiritual, devotional tapasya has he done?
Just by all these kind of tapasya you cannot get. What tapasya did the gopis do? What tapasya did Hanumanji do? They all, or this one, what's his name? The elephant, Gajendra. What austerities they did? They only chanted my names and they surrendered to me. So they got me. But simply somebody, if the demons perform big tapasyas, but then they don't surrender to me, so I kill them. So just by performing tapasya, I mean, of physical austerities, one cannot get me. And so he'll really be wild and he'll be screaming. So then the brahmachari, will be so scared and he'll come out. But, and, he will pay obeisances to the Lord. And so in front of him, only all this. Why are you doing all these things? Why do you want to become strong and powerful? Because austerities, these tapasyas, make one very strong. That means mentally also, you get mystic powers. That is this thing. Devotees are not interested in all mystic powers and all. They just want to, they may not have all these big powers and all that, but they just surrender to the Lord. And later, by the Lord's mercy, devotees also have all these powers, but they're not interested in using them or something. Because for them, they're very happy just surrendering to the Lord and depending completely on Him. Whatever He wants, let Him do. So that is the devotional mode. So, but because the brahmachari, even though he was heavily chastised, he thought that actually, I'm so fortunate that somehow mercy was given to me that I could see this pastime. I could see the Lord dancing. Oh, ecstatic. Doesn't matter. I deserve it, this chastisement. So he was thinking like a devotee, very humbly, So Chaitanya Mahaprabhu, and then he was leaving. He was leaving the place thinking that anyway, I would deserve it. And Chaitanya Mahaprabhu called him back and he put his lotus feet on his head and blessed him. Jai. So he said that now you should start chanting and all that. So the brahmachari was very happy. So in this way, Chaitanya Mahaprabhu blessed him. Yeah. हरे तो हम लोग चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो वहां पर जब शिवा सागर में चैतन्य महाप्रभु अपनी संकीर्तन की लीला करते थे, तो वहां पर बहुत सारे नास्तिक लोग थे जो कि मतलब इस बात की बहुत ज्यादा भत्सना करते थे कि ये लोग बहुत जोर जोर से चैंटिंग करते हैं। इन लोगों को मन में जप करना चाहिए, ये लोग शास्त्रों का पालन नहीं करते, तो इनकी वजह से हमारे गांव में बहुत ज्यादा विनाश हो जाएगा, हमारा पतन हो जाएगा, ये लोग शास्त्रों का पालन नहीं करते। तो और इस तरीके से वो बहुत सारे अपराध कर रहे थे, इस तरीके की बातें बोल बोल के। वहीं पर कुछ लोग जो पुण्य कर्म करते थे, उस तरह के भी लोग थे, और वो चाहते थे कि वो किसी तरीके से इन संकीर्तनों में शामिल हो सकें, उनका आनंद ले सकें, उनको देख सकें। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने मतलब ऐसे किसी भी व्यक्ति का प्रवेश जो है वो उसकी अनुमति नहीं दी हुई थी। तो उनके सिर्फ कुछ विशेष भक्त जो पार्षद थे, उन्हीं को उस संकीर्तन लीला में अंदर आने की अनुमति थी। तो उन्हीं में एक ब्रह्मचारी था जो कि बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण था, और उसने बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत पुण्य कर्म करता था। यहाँ तक कि उसने मतलब वो तपस्वी भी था, और उसने उस सिर्फ और सिर्फ दूध का सेवन किया करता था। वो भी चैतन्य महाप्रभु की दूध और फल का सेवन करता था। वो भी उसकी बड़ी तीव्र इच्छा थी कि वो संकीर्तन को देख सके, चैतन्य महाप्रभु का नृत्य को, चैतन्य महाप्रभु के संगीत को देख सके, संकीर्तन को देख सके। तो वो कई बार श्रीवास ठाकुर के पास आकर उनसे विनती किया करता था कि कृपया मुझे प्रवेश दें, लेकिन हर बार श्रीवास ठाकुर उनको मना कर देते। कई बार विनती करने के बाद एक बार श्रीवास ठाकुर को उन पर थोड़ी दया आई और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पर छुप कर उन लीलाओं को देखना होगा, क्योंकि हमें अनुमति नहीं है। तो इस तरीके से श्रीवास ठाकुर ने उसको अंदर प्रवेश करने का अनुमति दे दी, और वो एक वहाँ पे जो बड़ी बड़ी डोलचियां रखी थी बेद की, उनके अंदर एक डोलची के अंदर वो छुप गया।
तो जिस प्रकार से नित्य चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन शुरू होता था, तो उस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन शुरू हुआ और सभी लोग कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य सभी लोग कीर्तन कर रहे थे। अद्वैत आचार्य एक कोने से दूसरे कोने तक नाच नाच के जा रहे थे। इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से संकीर्तन हो रहा था। लेकिन अचानक चैतन्य महाप्रभु रुक जाते हैं और रुक के बोलते हैं कि मुझे आज आनंद नहीं आ रहा, जरूर यहाँ पे कोई छुपा हुआ है, जरूर कोई है यहाँ पर। तो श्रीवास ठाकुर ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो डर गए और उनके बोलने पर मतलब उन्होंने बताया कि हाँ, यहाँ पर एक ब्रह्मचारी को मैंने प्रवेश दिया है। तो इस पर चैतन्य महाप्रभु बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा कि तुम क्या सोचते हो कि किसी कोई भी जिसने भी जो भी एक कोई तपस्वी हो, क्या वो इन संकीर्तन में भाग ले सकता है या वो इस जगह पे आ सकता है? हाँ, उन्होंने उदाहरण दिए। उसने क्या भक्ति की है? हाँ, उन्होंने क्या भक्ति भक्ति का की क्या? है। हाँ, उन्होंने उदाहरण दिए कि जैसे गोपियों का उदाहरण दिया, हनुमान जी का उदाहरण दिया, गजेंद्र का उदाहरण दिया कि जिन्होंने पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया है। हाँ, लेकिन उन्होंने कुछ तपस्या नहीं किया। हाँ, उन्होंने कोई तपस्या नहीं। गजेंद्र, हनुमान और गोपियां कुछ तपस्या नहीं किया, लेकिन आत्मसमर्पण किया। तो बहुत सारे जो अश्व प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो तपस्या करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा उनका वध किया है, क्योंकि वो मुझ पर वो पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होते। तो उन लोगों को किसी भी तरीके से इन संकीर्तन को देखने की अनुमति नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भक्तों को किसी भी प्रकार की सिद्धि की कोई भी आवश्यकता नहीं होती और न ही वो सिद्धि चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान का शुद्ध नाम जपते हैं और उनको उनकी तरफ पूरी तरह से समर्पण रहते हैं और उसी में उनको सबसे परम आनंद आता है। तो और उन पर निर्भर है जो भी चाहिए। उनकी ये जो ज्ञानीज और कर्मीज जो तपस्या करते हैं, उनको सिद्धियां भी प्राप्त होता है। लेकिन भक्त लोगों को भी भक्ति करने से वो सब मिलता है, लेकिन वो सब प्रयोग करने के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से भगवान पर निर्भर है और भगवान उनके सब कुछ देख लेते हैं। तो इस प्रकार से जब वो क्रोधित हो रहे थे तो वो ब्रह्मचारी जो था वो भी उसको मतलब बाहर जाने के लिए बोला गया। तो वो भी काफी डरा हुआ था, लेकिन उसके हृदय में ये था कि उसने उससे ये अपराध हुआ है और वो इस तरह को सोचकर जब वो बाहर जा रहा था तो चैतन्य महाप्रभु ने उसके भाव को समझ लिया और फिर उसको अंदर बुलाया और उसके सर पे अपने चरण कमल रखे। इस प्रकार से उन्होंने उसको आशीर्वाद प्रदान किया। So Lord Chaitanya Mahaprabhu continued his kirtans like this, and all the pious people of the town, they felt very bad that, Nimai Pandit must be a very, very exalted devotee, and we want to see that. But because of all these, these atheistic and people, we are not able to do. So what to do? Then one of them suggested that in the morning time, when Chaitanya Mahaprabhu comes out, that time we can have darshan. So let us go and wait there. So they brought all fruits, flowers, and everything, and they were waiting. And as soon as Chaitanya Mahaprabhu came out of Srivasa's house, they all fell down flat, doing dandavats to Chaitanya Mahaprabhu. And Chaitanya Mahaprabhu was very happy, and he gave them instructions that he blessed them. He blessed them that may you all develop love for Krishna. And he showed them how to chant the Hare Krishna mantra. And he said, actually, if you keep on chanting, it is wonderful. You'll all develop love for Krishna. And he showed them, don't gossip unnecessarily, waste your time gossiping something. Instead, always keep chanting the holy names. And he told them how to chant the Hare Krishna mantra also. And then he said, small groups of people can get together and chant every day. And you can also include Hariharaya Nama, Krishna Yadavaya Namaha. Then he said that, and also all the family members can come together and chant every day. So the people were so happy to be instructed like that by Chaitanya Mahaprabhu, and they all followed it very nicely.
And so in every house, people started chanting, Hare Krishna mantra. There was sankirtan going on in all the houses. Everywhere they would hear only kirtan going on. Just imagine how wonderful it will be if you walk on the road and you keep on hearing kirtans every house. So that was what was happening. And so then devotees were also, sometimes going on the street and chanting Hare Krishna. So hearing this, kirtan one day, okay, you finish this, then I will. हरे कृष्ण। तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु का जो कीर्तन था वो चलता रहा, और जो भी मतलब पुण्य कर्म करने वाले लोग थे, उनकी बड़ी इच्छा रहती थी कि वो किसी तरीके से निमाई, जो कि एक बहुत जिनको कि वो बहुत शुद्ध भक्त मानते थे, बहुत वरिष्ठ भक्त मानते थे, उनके दर्शन करने के लिए बहुत ज्यादा लालायित रहते थे। लेकिन जो नास्तिक वर्ग के लोग थे उसकी वजह से उनको प्रवेश नहीं मिल पा रहा था। तो एक बार उन्होंने निर्णय किया कि क्यों नहीं हम लोग सुबह सुबह जब चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाएं खत्म करके बाहर निकलते हैं, हम उस समय उनके दर्शन प्राप्त करें। तो इस तरह से उन्होंने निश्चित किया कि हम जब चैतन्य महाप्रभु सवेरे निकलेंगे तब हम उनके दर्शन करेंगे। और वो वहां पे फल फूल इत्यादि लेकर एक दिन सवेरे पहुंच गए, और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु अपनी संकीर्तन लीला करके बाहर निकले प्रातः काल में, वैसे ही सब लोगों ने वहां पे गिरकर उनको दंडवत प्रणाम किया। और ये बात देखकर चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उन सबको आशीर्वाद दिया कि आप लोग हरिनाम लें और आप लोगों को इससे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। आप लोग प्रकार की जल्पा ना करें, तो सिर्फ अपना कोई भी समय बर्बाद ना करें, सिर्फ और सिर्फ हरिनाम। छोटे छोटे समूहों में बैठकर आप लोग नित्य प्रतिदिन रोज हरिनाम हरि कीर्तन किया करें, हरि हराय नमः इत्यादि गाया करें। और ऐसा ही नहीं, और सिर्फ कुछ लोग ही नहीं बल्कि सारे परिवारों के लोगों को भी उन्होंने बोला कि सबको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप लोग परिवार में भी बैठकर इस तरीके से संकीर्तन किया करें। तो जगह जगह पे हर जगह हर घर में इस तरीके से वहां पर संकीर्तन होने लगा, और बहुत ही हर्षमय माहौल पूरे गांव में हो गया। Yeah, so all the people, they were earlier using the kartalas, conch shell, and mridangas for only during Durga Puja, and now all of that they were using for sankirtana. And so one day when the devotees were doing sankirtana on the road, then the Sridhar, Kolvicha Sridhar, he was passing by and he heard the sankirtan from a distance, and then he started jumping and dancing very nicely. So all the devotees now, they went and surrounded Sridhar and they started singing and dancing. And Sridhar, he just felt so ecstatic, and he fell down and he started rolling in the dust and all that. So seeing all this, the atheistic people started saying, he doesn't even have food to eat, he doesn't have clothes to buy, and simply he's singing. He's also become a Vaishnava. So I'm sure, these devotees, they're singing only for begging. He doesn't have money, so he's singing. So these are all, they're just begging and like that. So they were just criticizing, but devotees didn't bother, let them say whatever they wanted. They were boldly chanting sankirtan on the road. Yeah. But one day what happened, the Qazi was going by and he saw all these people singing sankirtana everywhere, sankirtana sound. And he thought, these Hindus are becoming too bold. Ever since this Nimai Pandit came, how are they all chanting so loudly? They're doing their worship. Must put an end to it. So he called all his men. He said, go stop this kirtan. And the devotees, those who, they all went there and snatched all the mridangas, broke it. And the Qazi threatened them. Actually, today only I would have caught you all. But today, because it's quite late in the night, I'm leaving you all. Any more, if you all, if I catch you all singing doing sankirtan, then I'm going to put you in jail. And and then he sent every day, he would send all his men
to scan, go through walk around the streets and make sure that nobody's singing. So suddenly the sankirtan just stopped. There's no sound. All devotees were frightened. And then they went and told Chaitanya Mahaprabhu, you know what, this Qazi he's banned Sankirtana, so we are afraid to do Sankirtana. I think we have to leave Navadvipa and go somewhere else. Otherwise, we can't do Sankirtan. When Chaitanya Mahaprabhu heard that, he became so angry and he shouted, he was in the mood of Lord Shiva just during destruction. And so the devotees, said, have we done anything wrong? My Lord, please forgive us. He said, no. He told Nityananda Prabhu, go tell all the Vaishnavas that tomorrow morning, we are going to all do Sankirtan, and I will take the Sankirtan to all the streets of Navadvipa and finally go to Qazi's house. Let us see who can stop Sankirtana. जय हरि बोल। हरि बोल। तो इस प्रकार से जब संकीर्तन चल रहा था तो पहले हाँ, ये लोग जो दुर्गा पूजा के लिए जो भी करतला, मृदंगा और शंख उपयोग करते थे, वो सब रोज संकीर्तन के लिए प्रयोग करने लगे। एक दिन की बात है कि ये संकीर्तन पार्टी जो है वो अपना सड़कों पर संकीर्तन करते हुए जा रही थी, तो कोला बेचा श्रीधर की नजर उन पर पड़ी और कोला बेचा श्रीधर उस संकीर्तन को सुनकर इतने आनंद उनको प्राप्त हुआ और इतना भाव में आ गए कि वो उछलने लगे, कूदने लगे, नाचने लगे, जमीन पे गिर के लौटने लगे। तो सभी जो अभक्त लोग थे वो लोग उनके भाव को नहीं समझ पाए। नास्तिक लोग थे वो उनके भाव को नहीं समझ पाए और वो कहने लगे कि इनके पास खाने को कुछ नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, और इसी वजह से ये भीख मांगने के लिए ये इस तरीके से नाटक कर रहा है। तो इस तरीके के भाव लोगों ने उनके प्रति व्यक्त किए। एक बार इस तरीके से काजी जो है, लेकिन भक्त लोग इसका कुछ ध्यान नहीं दिया इस पर, और वो लोग तो संकीर्तन अच्छी तरह से मनाने लगे। इसी तरीके से एक बार काजी जो है वो जा रहा था और उसने देखा कि संकीर्तन हो रहा है और वो ये सोचने लगा कि अब तो हिंदू जो हैं वो काफी बोल्ड हो गए हैं, मतलब काफी निडर हो गए हैं। हाँ, निडर हो गए हैं, उनको बिल्कुल डर नहीं लगता। वो इतनी जोर जोर से संकीर्तन करते हैं, जप करते हैं, जरूर मुझे उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, इसको तो खत्म होना चाहिए किसी भी तरीके से। तो उसने अपने जो सिपाही इत्यादि थे उनको बुलाया और उनको कहा कि इस सबको रोको, और उनके जो आदमी आए उन्होंने इन लोगों के जो करताल, मृदंग इत्यादि थे वो सब छीन लिए और उनको तोड़ना शुरू कर दिया। तो काजी जो है आकर बोलता है कि अभी तो रात हो चुकी है, मैं आज आप लोगों को छोड़ देता हूँ, लेकिन यदि कल से ये संकीर्तन बंद नहीं हुआ तो मैं सबको जेल में डाल दूंगा। तो सारे लोग घबरा गए, सारे लोग डर गए और हर जगह संकीर्तन जो है अचानक रुक गया। जैसे ही संकीर्तन रुका तो इस बात की खबर जो है वो सब लोगों ने जाकर चैतन्य महाप्रभु को दी। उन्होंने बोला कि काजी ने हम लोगों को आदेश दिया है कि हम लोग संकीर्तन ना करें, अब तो हम लोगों को नगर के बाहर जाके ही संकीर्तन करना पड़ेगा। तो इस बात को सुनकर चैतन्य महाप्रभु बहुत ही नाराज हुए। उन्होंने कहा नगर के बाहर नहीं, हम लोग नवद्वीप छोड़ के और एक जगह में जाके बसना चाहिए, क्योंकि इधर तो हम संकीर्तन नहीं कर सकते हैं। सॉरी महाराज। तो चैतन्य महाप्रभु इन सब बातों को सुनकर नाराज, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। वो भगवान शिव की मुद्रा में आ गए उनके, और वो कहने लगे कि मैं कभी भी इस बात को कभी भी क्षमा नहीं करूंगा। और उन्होंने नित्यानंद प्रभु से बोला कि जाकर सारे वैष्णवों को बता दीजिए कि कल मैं संकीर्तन, मतलब कल सड़कों पे मैं खुद संकीर्तन आंदोलन करूंगा और सभी को एकत्रित करिए और सबको लेकर हम काजी के घर तक जाएंगे। So all the devotees, Lord Nityananda and all the devotees went and told all the people that today evening, from the afternoon, Lord Chaitanya is going to come dancing on the street. So all of you keep a torch ready, a torch and a little oil, so that you can also join in the kirtan all the way up to the Qazi's house. So the people were all very excited. And so what they did was, in every house, all of them decorated their houses with, banana stems, and then flowers and
coconuts, huge coconuts and all these things, mango leaves. And they made it, every house was decorated, and all the people, the old people, young people, ladies, children, everybody was ready. And in the same house, if the father made a torch, son also made a torch, everybody was excited and they were ready. And then devotees started gathering in Chaitanya Mahaprabhu's house. So the Lord also came out and they started a beautiful sankirtan. So then Chaitanya Mahaprabhu made many different groups, for having the sankirtan. He made Srivas Prabhu in charge, leader of one group, Haridas Thakura, leader of one group, Mukunda, Murari, all like that. So many of his, prominent disciples who sing very well, they all became like Vakreshwar Pandit. So they were all leaders of different groups. And then when he looked at Nityananda Prabhu, he said, "My Lord, I am not going to leave your side. What right have I got to dance independently of you? I'm going to stay there right next to you and take care of you." So Chaitanya Mahaprabhu was very happy, and he embraced him, because Chaitanya Mahaprabhu would go into ecstasy and sometimes he'll fall down. So Nityananda Prabhu wanted to stay close to him and take care of him. So like this, the kirtan started, and as they went from one street to the other, all the people, joined. I mean, people just left their homes open and they all came. And the thieves, they thought, "Ah, very good, all these people are leaving and going, we can go and rob." But they also, when they heard the kirtan, their minds changed and they also joined the kirtan. Hari Bol. Jai. And there were so many devatas also, they also came, and they also wore ordinary clothes and they were joined the kirtan. Hari So yeah, you see this. Then तो इस प्रकार से हाँ जी, बाबा। नित्यानंद प्रभु को जब चैतन्य महाप्रभु ने निर्देश दिया, तो नित्यानंद प्रभु और जो और भक्त थे वो लोगों के पास गए और उनको बोला कि आज चैतन्य महाप्रभु स्वयं संकीर्तन करने वाले हैं, तो आप लोग अपने अपने घरों में मशाले इत्यादि तैयार कर लीजिए और सभी को उस संकीर्तन में मतलब हिस्सा लेना है। तो जब सभी भक्तों ने ये बात को सुना तो वो भक्त काफी प्रसन्न हो गए और सभी लोगों ने अपने घरों को सजाना शुरू कर दिया। सारे घरों में जैसे कि केले के पत्ते, आम के पत्ते, फल, फूल, नारियल इत्यादि से सब लोगों ने अपने घरों को सजाया और सभी लोग, चाहे वो वृद्ध हो, युवा हो, जवान हो, बच्चे हो, सभी लोग तैयारियां करने लगे। सभी लोग काफी खुश थे। जैसे कोई भी मसाल बना रहा था तो सभी लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेने लगे। और चैतन्य महाप्रभु के घर के बाहर भी सब लोग इकट्ठे हुए और जब चैतन्य महाप्रभु उनके घर से बाहर निकले तो उन्होंने बहुत सुंदर संकीर्तन शुरू हो गया। और चैतन्य महाप्रभु ने फिर कई सारी टोलियां बनाई, जिनमें कि जैसे श्रीवास ठाकुर को एक टोली का अध्यक्ष बना दिया गया, इस तरह हरिदास ठाकुर को एक टोली का मुखिया बना दिया गया, मुकुंद, मुरारी, प्रकृष्ण पंडित इत्यादि जो जो अच्छा जैसे संकीर्तन क्या करते थे, गाते थे, उनको अलग अलग टोलियों का मुखिया बना दिया गया। और इस तरीके से सभी लोग मिलके संकीर्तन करने के लिए निकल पड़े। नित्यानंद प्रभु जो कि चैतन्य महाप्रभु के साथ थे, उन्होंने बोला कि मैं तो आपके साथ ही रहूंगा, क्योंकि मैं आपको नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते करते भाव में आते थे, कभी गिर जाते थे, कभी गिर पड़ते थे, कभी अचेत हो जाते थे, तो उनको संभालने के लिए नित्यानंद प्रभु जो हैं वो उनके साथ ही रहे। और एक सड़क से दूसरे सड़क तक इस तरीके से संकीर्तन आंदोलन चल शुरू हो गया। लोग एक एक करके जुड़ने लगे। जो और लोगों ने, यहाँ तक कि लोगों ने अपने दरवाजे भी बंद नहीं किए, और जो नास्तिक वर्ग के लोग थे वो ऐसा सोचने लगे कि अब तो ये लोग लगता है कि गांव छोड़कर जाने वाले हैं, नवद्वीप छोड़कर जाने लगे हैं। लेकिन फिर भी लेकिन उनके मन भी परिवर्तित हुए और उन्होंने भी उन लोगों के साथ उस संकीर्तन मूवमेंट में मतलब जो है संकीर्तन आंदोलन में उन्होंने भी हिस्सा लिया और वो भी उनके साथ साथ चलने लगे। And this was the first big sankirtana on the street in which Lord Chaitanya Mahaprabhu took part. So whoever saw became so ecstatic and they all joined. And it was going slowly, just like, the Ganga was also flowing. So slowly it was moving, because from place to place, Chaitanya Mahaprabhu will stop and then he'll go into an ecstatic
dance. So in this way, people were all absorbed in that dance. And when dusk fell, that is when the sun was setting, then people lit their torches, and it was so bright because every person was were holding a torch, and it was so bright. It seemed as if it was like daytime. And Chaitanya Mahaprabhu was towering over everyone. He's 8 feet tall, and he's got black curly hair and broad shoulders and very strong arms and everything. People were just mesmerized just seeing his beauty. And from above, the devatas were also blessing through it, dropping flowers. And those flowers, Mother Earth, she made them strewn on the road for the Lord to walk on. And it looked such a beautiful sight in the dark, because so many lakhs of people joined. Because Navadvip was a very, very crowded place, very prosperous, crowded place. So they went through marketplaces, all the public places, everything they were going, and they could see how prosperous the city was. And and it looked such a beautiful thing, the way they, with the torches, they were dancing, swaying, and and some of them were holding oil cans also. And even children, ladies, old men, everybody was there in that sankirtan, this of Chaitanya Mahaprabhu. And some of them were so angry. Some they said, "Who's this Qazi? I'm going to chop off his head." And some other people, they pounded their hand. I mean, they were so bold. Imagine that. Normally, they would have all been afraid of the Qazi. But Chaitanya Mahaprabhu had told them, "Don't be afraid. I am there with you." So they all became very bold, and some of them said that I'm going to, these atheistic people, I'm going to just, strike them. I'm going to really pulverize them. And so they were beating the ground and all that. So when the atheistic people, they heard all this, they were burning with envy and hatred, and they were afraid also. But then still they were thinking, what's going to happen? They were all saying, just wait, we'll go and tell them that the Qazi is coming, or something like that. Then they will all run away. So these sort of things, they were burning with envy, because so much of devotion, so many people joining. And so very nicely they came near the Qazi's house. And even the Qazi could hear the Sankirtan from a distance, from his palace. He could hear this huge Sankirtan, and he thought, what is this noise? Is it a wedding or something? Is Nimai getting married or something? What is this wedding party? Because I can't imagine that Nimai will disobey my order, and that they are doing Sankirtan. Go and see. So he'll send his spies to go and find out. And the spies will come back and tell that, oh, it is actually a big crowd, and Nimai is the one who's leading it. And we're all so afraid because they're threatening to kill you. And what they did was, now all the men were afraid now, because they are coming towards the palace, and they were afraid of their lives. So what they did, they took their turban and put it like, covered their faces and all that. And they also, in the dark, they tried to be just, move into the crowd so that they can hide their beards. Otherwise, they'll understand these are Qazi's men. So in this way, they all escaped. But Qazi, he was so frightened, and he went under the cot and he was hiding in his house. हरि बोल। तो इस तरीके से ये पहला ऐसा संकीर्तन आंदोलन था जिसमें कि इतने सारे लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। सभी लोग इसमें शामिल हुए। और चैतन्य महाप्रभु का पहला संकीर्तन था ये। महाप्रभु का सबसे पहला संकीर्तन था जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर बाहर दैट इज नाचना, और बाहर सड़क पे नाचना, ये पहला संकीर्तन था। थैंक यू। और वो धीरे धीरे करके लोग उसमें जुड़ते जा रहे थे, और वो धीरे धीरे चल रहा था, जिस तरह से गंगा धीरे धीरे बहती है। तो जगह जगह पर वो रुक रहे थे, जगह जगह पे नृत्य कर रहे थे, और सभी लोग बहुत ही हर्षोल्लास से संकीर्तन में भाग ले रहे थे। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था और
शाम का समय शुरू हो रहा था, वैसे ही लोगों ने अपनी मशालें जला ली और मशालों के जलते ही हर जगह इतना रोशनी हो गई थी, चकाचौंध हो गई, जैसे कि मानो कि दोबारा दिन निकल आया हो। चैतन्य महाप्रभु की सुंदरता और दिखती जैसे बनती सॉरी थी। मैं बोलने के लिए भूल गई, जैसे ब्रह्म ज्योति, भगवान की ब्रह्म ज्योति, इस प्रकार इतना प्रकाश था। हरे कृष्ण। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु की सुंदरता देखते बनती थी, उनके लंबे लंबे हाथ, घुंघराले बाल, उनकी लंबाई, उनके चौड़े चौड़े कंधे इत्यादि देखकर सभी हर्षित हो रहे थे। यहाँ तक कि देवता भी ऊपर से फूल बरसा रहे थे और धरती माता उन फूलों को समेट कर मानो एक रोड बना रही हो जिनके ऊपर चैतन्य महाप्रभु चल सके। तो इस तरीके से हर जगह जगह पर संकीर्तन पार्टी जा रही थी और वो नृत्य कर रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे और सभी लोग बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो रहे थे। लोगों ने मशाले जला रखी थी और कई लोगों ने तो हाथ में तेल के जो डब्बे भी ले रखे थे। हाँ, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी सभी तरह के लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे और कई लोगों को तो क्रोध आ रहा था कि ये काजी कौन है, इसकी हिम्मत कैसे हुई। इस तरीके से सभी लोगों में अंदर मतलब इतनी हिम्मत बन गई थी, सभी लोग निडर हो गए थे, सभी लोग कोई मतलब चैतन्य महाप्रभु ने बोला किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, तो सभी लोग एकदम निडर महसूस कर रहे थे। वो जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु उनके साथ हैं तो उनका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। वहीं पर जो नास्तिक लोग थे, हाँ, वो मतलब हालांकि उनके साथ जरूर थे, लेकिन उनके अंदर काफी ईर्ष्या भाव था, उनके यहाँ था। साथ में नहीं थे, नास्तिक लोग उनके साथ नहीं थे, वो सिर्फ देख रहे थे बस। वो किधर आएंगे संकीर्तन में? सॉरी। तो जो नास्तिक लोग थे वो देख रहे थे, वो घृणा कर रहे थे, वो उनमें ईर्ष्या भरी हुई थी, वो यही सोच रहे थे कि अभी जैसे ही काजी आएगा वैसे ही ये सारे लोग वो आपस में बातें कर रहे थे, आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हम जाके उनको बताएंगे काजी आ गया, काजी आने वाला है, तो ये लोग ऐसे ही भाग जाएंगे। करके भाग जाएंगे। और जैसे जैसे ये संकीर्तन आंदोलन जो है वो चलते चलते काजी के घर पे के पास पहुंचने वाला था, तो इतनी तेज संकीर्तन इतना तेज हो गया और इतनी ज्यादा आवाजें आने लगी कि काजी के घर के अंदर भी ये आवाज सुनाई देने लगी। तो काजी ने अपने लोगों को बोला कि जाके देख के आओ, ये लोग कौन है, ऐसा इतना कैसा इतना बड़ा जलसा आ रहा है, ये किसी की शादी है, ये क्या है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से जब काजी ने अपने लोगों को भेजा, तो जो काजी के लोग वहाँ पे जासूसों की तरह आए और वो देखकर जब वो वापस काजी के पास गए तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो एकत्रित होकर चैतन्य महाप्रभु के साथ संकीर्तन करते हुए आपके घर की तरफ आ रहे हैं। तो हर जगह तो काजी और काजी के लोग के अंदर भी भय भर गया था और वो अपने जो काजी के जो सिपाही इत्यादि थे उन्होंने अपने को छुपाने के लिए अपनी पगड़ी को खोलकर अपने मुंह की तरफ बांध दिया था और वो भी इन्हीं के बीच में से होते हुए निकल गए, जिससे कि मतलब इनको कोई नहीं देख सके, इनको कोई नहीं पहचान सके। और सारे मतलब चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते हुए काजी के घर पे पहुंचे। So when the people came inside, they were so angry and they just went on a rampage. They just destroyed all the trees and the garden and everything. And they said, we're going to kill the Qazi. They were shouting out. Then Chaitanya Mahaprabhu restrained them. And tomorrow we will see how the, Chaitanya Mahaprabhu spoke with Qazi. What was the communication, discussion between them? We'll see tomorrow. हरी हरी बोल। तो इस तरीके से लोग जो हैं सारे लोग एक काफी गुस्से में काजी के घर पर प्रवेश करते हैं और वो सब कुछ तोड़ना शुरू कर देते हैं, पेड़ पौधे इत्यादि सब उखाड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु फिर उनको रोकते हैं और मतलब सारे लोगों का ये भाव था कि वो किसी तरह से भी काजी को मार देना चाहते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सबको रोकते हैं, सबको शांत करते हैं। और हम अब कल बाकी आगे की लीलाओं का श्रवण करेंगे, जिसमें कि चैतन्य महाप्रभु ने काजी से किस तरह से बात की, क्या उनको कहा, और आगे की लीलाओं का कल हम श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। और ये संकीर्तन पूरा नवद्वीप में जहां जहां पब्लिक प्लेसेस है ना, मार्केट प्लेस, सब जगह घुमाते हुए गए चैतन्य महाप्रभु। सबको दिखाना चाहते थे कि ये संकीर्तन को कोई नहीं रोक सकता, है ना, ये सब के लिए है। हमें ऐसे अभी करना पड़ेगा जगह जगह पे। हाँ, वही है।
हरि बोल। संकीर्तन इज द ओनली वे। एंड हर हर किसी को उन्होंने आदेश दिया कि अपने घरों में जाके रोज संकीर्तन करना, और उन्होंने ये आशीर्वाद भी दिया कि आप लोगों के हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत होगा। आप लोग ना जय अननेसेसरी जो कुछ बकवास बातें मत, व्यर्थ बातों में समय नष्ट नहीं करना। जैसे किसी के बारे में गॉसिप को क्या कहते हैं, चुगली, प्रजल्पा प्रजल्पा प्रजल्पा। प्रजल्पा जो भी हम बात करते हैं ज्यादा से ज्यादा, जो डिवोटीज भक्त के साथ, तो जो भक्त के संग में जो बातें होते हैं वो हमेशा सेवा के बारे में या प्रचार के बारे में या हमारे साधना के बारे में, या जो भी हम काम करते हैं वो कैसे कृष्ण भावनामृत में करें, ऐसे बातें होती है। लेकिन अब विषयी लोगों के साथ बात करते समय क्या होता है, प्रजल्पा। फिल्म का, हाँ, उसका, सीरियल और का, दूसरों के बारे में निंदा, वो तो हम निंदा। भक्तों के साथ भी नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपको कोई निंदा की बातें सुनाई देता है ना, आप गौरंगा टॉपिक, हाँ हाँ, गौरंगा उधर बोलने से का गौरंगा और निंदा आएगा। टॉपिक चेंज कर देना या उधर से निकल जाना। नहीं, ये सब सुनने से हमारा मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इसीलिए हम गॉसिप में समय नहीं बीतना चाहिए। जैसे भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने कहा, ये जो गॉसिप है ना, या लोगों के बारे में निंदा की बातें करना, ये सब हमारे लिए अचार जैसा है। जैसा खाते समय अचार बहुत अच्छा लगता है, अचार खाना ही है ऐसे सोचते हैं, लेकिन नहीं, नहीं लेना है उसको। और तभी हमारा हृदय पवित्र होगा और भगवान का नाम सुनते सुनते हमको भगवान का प्राप्ति होगा। यही चैतन्य महाप्रभु के वरदान है कि कोई भी उनकी शरण में आ सकते हैं, चांटिंग कर सकते हैं और कृष्ण प्रेम पा सकते हैं इतनी आसानी से, जो कि ब्रह्मा शिवा लोगों इत्यादि इतने महान लोगों को भी आसानी से नहीं मिलता है। उनको बहुत तपस्या करना पड़ेगा। लेकिन हम कुछ क्वालिफिकेशन ही नहीं हमको ये सब प्राप्त करने के लिए। हम कलयुग में पड़े हुए बहुत ही बद्ध जीव है, और ऐसे लोगों को लिए भी चैतन्य महाप्रभु फ्रीली दे रहे हैं। बस चांटिंग करो, हाँ, आनंद मिल जाएगा, कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। ये कितना बड़ा ये है, मर्सी है ना, करुणा है उनका। आशीर्वाद है। फ्री में, हाँ, आशीर्वाद है। हमको फ्रीली दे रहे हैं, हम क्वालिफाइड भी नहीं है फिर भी दे रहे हैं। इसीलिए उन्होंने जगाई मदाई को दिया। देखो, जगाई मदाई को मिल गया तो तुम भी ले सकते हो। उनका तो कोई ऑस्टेरिटी नहीं था, कुछ तपस्या कुछ भी नहीं, कुछ भक्ति कुछ भी नहीं किया वो लोग, सिर्फ और सिर्फ पाप किया, अकारण उनको पाप सिर्फ ही किया, पाप और किया। अकारण उनको इतना कृपा मिला। लेकिन वो कृपा लेने के लिए तैयार थे अंत में। तो इसी प्रकार हम भी बहुत पाप कर्म किए हैं पहले, हमको भी इतना रुचि नहीं हुआ होगा। लेकिन अब भी जब भी हमको चैतन्य महाप्रभु की महिमा के बारे में हम जानकारी प्राप्त होता है चैतन्य लीलाओं से, तो हम तुरंत सब कुछ छोड़ के उनके शरण में होना चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल ओनली केवल चैतन्य महाप्रभु की शरण में, और अच्छी तरह से जाप करना चाहिए। उसी से हर प्रकार का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा, और सबसे विशेष सौभाग्य तो कृष्ण प्रेम है। हरि बोल। क्योंकि कृष्ण प्रेम होने हरि से बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। कृष्ण प्रेम बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। कृष्ण प्रेम होने से हम बाकी चीजों से ये हम क्या हमारे ये हो जाएगा, एक घृणा, वैराग्य। हाँ, वैराग्य। घृणा, वैराग्य हाँ, अच्छा भी नहीं है। वैराग्य प्राप्त होगा। इसमें क्या है, जैसे ना तो हमको और अच्छी चीज का अनुभव होगा, तो हम तुच्छ चीजों को अपने आप छोड़ देंगे, है ना। जो जो बेकार चीजें हैं, जिस पर मन आसक्त था पहले, और आसक्ति के कारण बहुत प्रकार के दुख भी, क्योंकि आसक्त होने से क्या होता है कि जो भी हमें वो प्राप्त नहीं होता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, और इससे अनेक प्रकार की बंधनें होती है।
लेकिन जब भी हमें सबसे सर्वोत्तम आनंद की प्राप्ति होती है, उसके अंदर सब कुछ है। भगवान हमारे सब कुछ, सब प्रकार के हमारी देखभाल करेंगे। तो इसीलिए हमें ये इस पर ही ज्यादा, आई मीन फुल कंसंट्रेशन। भगवान चैतन्य महाप्रभु कितने महान और कितने दयालु है। महावदन्य है। वो अचार नहीं है, वो पॉइजन है। वो बोला निंदा जो करे वो अचार नहीं है, पॉइजन है वो खाएगा नहीं, तो हम हाँ वो पॉइजन है, लेकिन हम लोग सोचते हैं वो अचार है, लेकिन वो अचार है। नहीं। हाँ इसलिए अभी हमें अभी अभी